Hello everyone, am I audible? Hello, sir. Yes. Hello. Okay, hi. How was it so far? कैसा चल रहा है? Fine. ऑल गुड सर। आपकी तबीयत कैसी है? It's like tablet ले लेके काम चल रहा है अभी तो. ओके। Okay, so account setup हो गया है सबका? No, sir. Actually, I have यस सर। created the account, but Yes. something went wrong problem. ठीक है, तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया मुझे? Uh, I think मुझे लगा कि अभी आपको करना था इसलिए मैंने मैसेज किया नो आपको. इश्यूज, आप मैसेज ड्रॉप कर भी देते ना तो दूसरे कोऑर्डिनेटर्स आपको हेल्प कर देते. एनीवेज, ओके, आज उस प्रॉब्लम को अपन कल फिर सॉल्व करते हैं दिन में. ओके. Okay, okay. Okay. Anyone else facing any specific issue? No, I have No. created. Okay. You have created, right? Successfully. What about others? सबका बन गया है ना? यस यस ग्रेटेड। Yeah, Megha, what about you? Mm, Something went wrong problem. okay. I mean, what specific problem you are facing? I think just a second. Sir. There is something went wrong with your request. Clear your cookies. Check your request. Okay, must be some browser issue. We'll check on it. Mridul and Nikhat and Ashish, all good? यस सर ग्रेटेड। Yes, sir. Okay, cool. Yes. Okay. Just a second. I'm just coming back. Okay. So, any doubts with any of the previous topic जो अभी अपन ने cover किए थे first day? Any questions or anything? No, no, sir. All good? Yeah, yeah. Okay. So, what I'm gonna discuss today, as per our sequence, it should be IAM role today, right? But with that, we will be discussing two more services because IAM role अपने को apply करना पड़ेगा on the fly on some of the service. Okay, so the main topic will be the IAM role itself, but we'll have to start from some other service. Okay, so let me quickly open the AWS.
I hope जिनका account बन गया है, they are not facing any. You created your account? Okay, what's okay? Specifically to your email ID, because you already have an account, na? That's why. You might have to use some other email. Okay, I'll have to check in that case. Okay. So today I'll be covering the Lambda service, okay, with the IAM, and maybe we will be integrating the S3. So it will be going in parallel all together. ठीक है, क्योंकि आपस में उनका relations है. ठीक है. So Lambda, anyone has any idea why we use this service? If you'll see on AWS, a single liner explanation, run code without thinking about servers. ओके, आपको कोई भी किसी भी तरह का कोड चलाना है, आपको सर्वर्स नहीं चाहिए. सो दैट मीन्स AWS Lambda is a serverless service for development and deployment. Okay, deployment means, anyone any idea deployment क्या होता है? Anyone? एप्लीकेशन को सर सर्वर पर रन कराना. एप्लीकेशन को यूजर के लिए अवेलेबल करवाना, या फिर अब AWS सर्वर या फिर लैम्डा के केस में जो भी अपन यहाँ कोड लिखेंगे, दैट विल बी अवेलेबल फॉर यूज with a single click, and that's what we are going to see today. Okay, I didn't got the chance to update this, but I'll update it today. Can you please just post all of your email ID so that I can provide you all the access? Chat में मुझे email ID paste कर देना. Okay. Yeah, okay. Others also, please share your email ID. Okay, I'm giving edit access to all of you, just in case if you want to add things up or organize anything, you guys are also free. But mostly try करना किसका, make a copy and then work on it. But every day it's gonna get updated, तो आप copy will not work. नहीं तो daily एक copy बनाना पड़ेगा. Okay, so now let's talk about AWS Lambda. अगर AWS console पे अपन login करते हैं, if you want to access any service, we'll have to simply search it on the this particular toolbar. Okay, जिस service को अपन recently access करते हैं, they will be getting displayed here as recently visited. जिनको भी अपन recently visit करेंगे, so you will see a shortcut here as well, but you can also search the services from your search menu. Okay, if you'll click on Lambda, now it's just the beginning. You don't know anything about Lambda. आपको बस ये पता है कि उसमें आप कोड या deployment easily कर सकते हो. If you come on this particular screen, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. First thing is function name. Function name होता है आपके उस Lambda function का नाम, कि आपने उसको क्या यूनिक नेम दिया है for identification purpose. Mostly whenever you name any function, make sure कि उसका नाम उसकी functionality से मैच हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डेट को या डेट जनरेट करने का कोई फंक्शन बनाया है, तो उसका डेट जनरेटर नाम होना चाहिए. किसी का किसी लैम्डा फंक्शन का काम है कि किसी CSV फाइल में से लोअर केस को अपर केस करना है, सो चेंजिंग दी फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस या अपर केस टू लोअर केस, ताकि फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक आप उसमें फंक्शंस क्रिएट करो. ओके, there are multiple things. First thing, in each and every service you will see a dashboard. Dashboard is something that will help you track your account's usage.
कि आपने जो सर्वर या जो आपने फंक्शन बनाया है इन डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, उसका स्पेसिफिक यूसेज आपको पता चलेगा. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव क्रिएटेड 11 लैम्डा फंक्शंस, जिसका अभी तक ऑक्यूपाइड स्पेस इज 500 KB. फुल अकाउंट कंकरेंसी वी विल डिस्कस, इसलिए मैं भी कंफ्यूज नहीं करता हूँ. अनरिजर्व्ड अकाउंट कंकरेंसी, एंड दीज आर फ्यू मेट्रिक्स. कितने अपने लैम्डा है जिसका कोड है वो फेल हुआ है या कहीं ना कहीं वो नहीं चल पाया या एरर आउट हो गया या किसी रीजन से कोई भी प्रॉब्लम आ गई, वो एरर काउंट एंड सक्सेस रेट यहाँ पे पता चलेगा. ड्यूरेशन, यानी कि कोई एग्जीक्यूशन स्टक हो गया तो आपको पता चलेगा स्पाइक. अगर किसी भी ग्राफ में ऐसा एकदम से कुछ ऊपर जाता हुआ दिखता है तो टेक्निकल टर्म्स में वी कॉल इट एज स्पाइक, कि स्पाइक इन आवर मॉनिटरिंग, स्पाइक इन आवर अलर्टिंग. ओके. थ्रोटल मीन्स आपका कितनी बार वो लैम्डा थ्रोटल हो रहा है, कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बार बार चल रहा है. ओके. सो थ्रोटलिंग का भी एक लिमिटेशन होता है. इन्वोकेशन मीन्स कितनी बार वो ट्रिगर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक लैम्डा फंक्शन बनाया है सिंपल सा, जिसमें कि वही लोअर केस से अपर केस अपने को करना है और सिर्फ जितनी फाइल हो उतनी बार वो कर दे. तो इन्वोकेशन से आपको पता चलेगा आज कितनी फाइल्स अपन ने चेंज किए या कन्वर्ट किए, या कितनी बार अपना लैम्डा फंक्शन कॉल हुआ है, तो वो आपको इन्वोकेशन में काउंट मिलेगा. कंकरेंसी आई एम नॉट कवरिंग राइट नाउ. इवेंट एज, यानी कि उसको टाइम कितना लगा है इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स, टाइम उसको एग्जीक्यूशन का. सो मिनिमम मैक्सिमम, किसी ऑपरेशन कोई फाइल बड़ी है तो उसको ज्यादा टाइम भी लग सकता है. सो दैट्स हाउ यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हियर. ओके. असिंक इवेंट्स रिसीव्ड, यानी कि आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस रहता है कि साथ में पैरेलली कैसे चल रहा है, या किसी एक एग्जीक्यूशन को क्या दूसरे लैम्डा को, मतलब एक ही लैम्डा में एक साथ एक ही मोमेंट पे दो फाइल आ गई, तो वो पहले किसको हैंडल करेगा, क्या वो पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरे वाले को हैंडल करेगा या दोनों को साथ में प्रोसेस करेगा अलग अलग तरह से. वो चीजें भी कॉन्करेंसी में भी आ जाता है. ठीक है. सो असिंक इवेंट्स जो सिंक में नहीं है. ठीक है. ये सारी चीजें आपको यहाँ मैट्रिक्स मिल जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू विल सी द एप्लीकेशन, तो आप पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन बना सकते हो विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन. ठीक है. जैसे यही सिंपल सा अपन लेते हैं, लोअर केस से अपर केस करने का अपना मेन फंक्शनैलिटी, पर हो सकता है वो जो फाइल है उसमें नंबर्स भी हो, आपको सारे नंबर्स पहले रिमूव करना है. तो सबसे पहले वो एक लैम्डा से जाएगा जिसमें नंबर्स रिमूव हुए, कॉमा या स्पेशल कैरेक्टर दूसरे लैम्डा ने रिमूव किए, तीसरे लैम्डा ने उसको अपर केस में किया, चौथे ने उसको वेरीफाई किया, एंड सो ऑन. अगर वेरिफिकेशन फेल हुआ तो वापस से थर्ड पे चला गया. सो यू कैन क्रिएट ए एंटायर फ्लो. दैट्स ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन, तो फंक्शन वो स्पेसिफिक यूनिट है जो वो पर्टिकुलर काम कर रहा है. ठीक है. अब इसको अपन आगे देखेंगे तो आपको वो चीजें पता चल जाएंगी. फिर इसमें एडिशनल रिसोर्सेज है, जैसे कि कोड साइनिंग, कॉन्फ़िगरेशन, इवेंट सोर्स मैपिंग, लेयर्स, रेप्लिकास, जो अपन आगे चल के कवर करेंगे. सो आई एम नॉट कवरिंग इट, एल्स इट माइट कंफ्यूज यू. फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट टास्क इज टू क्रिएट अ फंक्शन. एक लैम्डा फंक्शन बनाना बहुत सिंपल है. यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट फंक्शन. अब there are multiple option. Start with a simple hello world example जिसमें एक प्री रिटन एग्जिस्टिंग आपका कोड आ जाएगा. ठीक है. उस कोड में आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा. यूज ए ब्लूप्रिंट, दैट मीन्स बिल्ड ए लैम्डा एप्लीकेशन फ्रॉम सैम्पल कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट्स, यानी कि कुछ पहले से बने बनाए प्रीसेट्स हैं. ठीक है. अलग अलग कि आपको S3 की सर्विस बनानी है तो कुछ पहले के बने बनाए भी कोड हैं जो AWS प्रोवाइड करता है, आप वो ब्लूप्रिंट को यूज कर सकते हो. इधर आप खुद का कोड लिख रहे हो. कंटेनर इमेज इज लाइक यू सेलेक्ट ए काइंड ऑफ कंटेनर इमेज टू डिप्लॉय योर फंक्शन. जिसको कंटेनर इमेज नहीं पता है, तो आजकल वी कंटेनराइज द एंटायर एप्लीकेशन. कंटेनराइजेशन मीन्स पहले जब हम विंडोज यूज करते थे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, तो कई बार इंस्टॉल होने के बाद वो रन नहीं होता था. DLL फाइल मिसिंग और समथिंग मिसिंग जो एक्सटर्नली अपन डाउनलोड करते थे, गेम और मल्टीपल सिनेरियोज हैं. आजकल इफ विल सी द लेटेस्ट ट्रेंड्स, वी डोंट फेस दैट इशू यूजुअली. अपार्ट फ्रॉम दैट,
प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल किया तो दैट मीन्स इट्स गोना रन। सिर्फ आपका रैम या स्टोरेज ही अफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है इट इज कमिंग विद द मेन कोड, इट्स डिपेंडेंसी ऑल्सो, सब एक ही साथ बाइंड करके कंटेनराइज किया हुआ है। ओके ये जो पूरी प्रोसेस होती है किसी कोड को कंटेनराइज करना, दैट मीन्स उसकी डिपेंडेंट चीजें, उसको क्या क्या लगने वाला है वो रन करने के लिए, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। अगर मैक में इंस्टॉल किया तो भी चलना चाहिए, इधर किया तो भी चलना चाहिए, तो वो सारी चीजें कंटेनराइज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेनराइजेशन। ठीक है, फिर कंटेनर्स के इमेज बनते हैं, ये पूरा डेवॉप्स का पार्ट है। ओके आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाई लेवल आइडिया। डॉकर के थ्रू हम लोग जो डॉकर और कुबरनेटिस आप लोगों ने नाम सुने होंगे, सो डॉकर के थ्रू हम कंटेनराइज करते हैं। कुबरनेटिस इज द प्लेटफॉर्म जिससे हम उस इमेज या कंटेनराइजेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, कुबरनेटिस को K8 भी बोला जाता है, K8। ओके सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस। कंटेनर इमेज तब यूज होता है जब अपने पास पहले से ही बना हुआ सॉफ्टवेयर है या इमेज है जो अभी अपना यूज केस नहीं है। ब्लूप्रिंट कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है जो शायद आपको आगे जाके जरूरत लगे, बट राइट नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके लेट्स सपोज right now I'm going to name the function as print hello world. Okay, so there are few protocols of writing the function name. आप blank space नहीं यूज कर सकते, मैंने space डाला वैसे यहाँ पे error आ गया। नीचे error is saying function name can contain only letters, numbers, hyphens and underscores. We can use hyphen here. Okay, underscore we can use, but in AWS it's a best practice to use hyphen always. AWS में हमेशा hyphen को ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। Okay, simply let me use print hello world. Now the best part is आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, which this offers. If you will see, अभी आपको याद भी रखना पड़ेगा for interview purpose कि lambda function supports which all programming languages. So, or lambda function supports which all latest programming languages. So you can say recently it introduced .NET 8, Java 21, Node.js 20x, Python 3.12, Ruby 3.3 and even Linux. ठीक है, अदर्स आर जावा, मतलब इनके पहले के जो हैं .NET 8 है तो 7 तक तो हो गई, जावा है तो 20 तक तो है, एंड मूविंग फॉरवर्ड हो सकता है एक महीने बाद आपको यहाँ पे ऊपर 20, मतलब वर्जन वाइज चीजें चेंज होती मिले। सो इट्स नॉट दैट मैंडेटरी, बट अगर AWS का इंटरव्यू है तो एक बार लेटेस्ट सपोर्टेड अपन टेक्नोलॉजीज को देख के ही इंटरव्यू में जाएंगे। इन आवर केस लेट्स सेलेक्ट Python 3.9 क्योंकि ये एक बहुत कंफर्टेबल वर्जन है। ओके वी कैन इवन यूज 11, 12, 13 जिसमें नए फीचर्स आते हैं, बट 3.9 आई एम यूजिंग। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप 3.11 भी यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज चूज द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यू वांट फॉर योर फंक्शन कोड। ठीक है, आप आपके कोड को किस आर्किटेक्चर में रन करना चाहते हो। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर, x86_64 और ARM64, दीज आर आर्किटेक्चरिंग कोड जो प्रोग्रामिंग लेवल पे आएंगे और जिसको मैं आगे कवर करूंगा। अभी इसको क्योंकि इफ आई टेल मोर अबाउट दिस थिंग सो you are gonna get confused. Permissions by default, this is very important. Okay, and it is also asked in interview, ये आपको याद रखना है। Question will be what all are the default permissions in a lambda function. Default उसको क्या क्या permission होती है, ठीक है। So lambda will create an execution role with permission. अब permission यहाँ से आया है, upload logs to CloudWatch logs, यानी कि CloudWatch एक अलग सर्विस है। अभी लैम्डा फंक्शन को एक डिफॉल्ट में परमिशन है कि वो उसके एग्जीक्यूशन के लॉग्स CloudWatch में डाल सकता है, एंड वी कैन कस्टमाइज दिस डिफॉल्ट रोल लेटर व्हेन एडिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन रोल इज समथिंग वेयर वी टच द IAM सर्विस।
है ना। थोड़ा सा मैं इस साइड में आता हूँ। एवरीवन यू आर देयर राइट? Yes, yes. समझ में आ रहा है ना? हाँ. ओके Yes, yes. ओके। सो IAM पे अपन एक बार आते हैं। बिफोर क्रिएटिंग द फंक्शन, IAM एक्चुअली हेल्प्स अस इन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आपका एक पूरा टीम है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अमेजन है, ठीक है। अमेजन में आपने एक कोड बनाया, ठीक है, जो चलता है, या आपने एक फोल्डर बनाया जिसमें कुछ डेटा रखा है, या PDF। लेट सपोज अपना वही एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपने वो फाइल को कन्वर्ट करके रख दिया है। अब आपके पास में एक्सेस था वो पुरानी फाइल को उठाने का, जो कि कन्वर्टेड या क्लीन नहीं थी, और आपने आपके लैम्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट यानी कोड एग्जीक्यूट करने का भी आपको परमिशन था। ओके, देन आपने एक नई फाइल जनरेट की, उसको एक्सेस करने का भी आपको परमिशन था। बट अब वो फाइल आपको दूसरी टीम को देनी है। उस टीम को सिर्फ क्लीन फाइल देखने का ही परमिशन होना चाहिए, बट एवरीथिंग इज विद इन द सेम अकाउंट। तो आपको अलग अलग यूजर बनाने होते हैं। यूजर मीन्स एम्प्लॉय, ऐसा समझ लो। फिर यूजर के ग्रुप बना देते हैं कि ये यूजर इस ग्रुप में आता है या इस टीम में आता है। ओके, और उस ग्रुप को भी परमिशन असाइन कर सकते हैं। इवन इन अ ग्रुप ऐसा होता है कि टीम लीड को कुछ अलग परमिशंस है, जूनियर्स को अलग है, न्यू ज्वाइनर्स को अलग है। सो आप इंडिविजुअल यूजर स्पेसिफिक परमिशंस भी असाइन कर सकते हो। उन परमिशंस को बोला जाता है रोल, ठीक है। AWS सर्विस के रोल है ना। इस पे ऊपर अपन एक एक करके आएंगे, इसमें अभी नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ हाई लेवल बता रहा हूँ अभी। पॉलिसीज होती है कि उस पर्टिकुलर रोल के पास क्या क्या पॉलिसीज या क्या क्या एक्शंस अलाउड है। रोल ये समझ लो कि एक ऊपर से आते हैं। यूजर ग्रुप फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टीम हो गई। डेवलपमेंट टीम में 5 यूजर है, एक सीनियर, 3 इंटरमीडिएट और एक जूनियर, फॉर एग्जांपल फ्रेशर। अब जो मैंने अभी डेजिग्नेशन बोला है वो उनके रोल है, एक सीनियर, 3 इंटरमीडिएट और एक जूनियर। अब इन चारों पांचों को क्या क्या परमिशंस है वो उसकी पॉलिसीज है, ठीक है। वो अपन असाइन करेंगे तब यू विल गेट टू नो बेटर। नाउ इफ वी कम बैक टू अवर लैम्डा फंक्शन, यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन रोल बनेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या करता है लैम्डा फंक्शन, जब भी अपन नया बनाते हैं इट विल क्रिएट ए न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशन, ठीक है। और बेसिक लैम्डा परमिशन क्या है? सिर्फ क्लाउड वॉच की सर्विस पे अपने एग्जीक्यूशन के लॉग्स क्रिएट करना। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ वो देखने के लिए एक बेसिक अपने को लॉग्स को तो ट्रैक करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई। ओके, आप चाहो बाय डिफॉल्ट तो ये नया रोल बनाता है, बट अब जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन अगर अपन बनाते तो तीनों काम के लिए, कि फाइल में से कॉमा हटाने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर हटाने के लिए, या अपर केस करने के लिए, शायद ऑलमोस्ट आपको उन्हीं सर्विसेज को टच करना पड़ रहा है, वही काम करना पड़ रहा है। तो हो सकता है तीनों काम के लिए या तीनों लैम्डा में आप एक ही रोल असाइन कर दो, या हो सकता है तीनों के अलग अलग काम हो तो तीनों के अलग अलग रोल बन जाए। दैट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, जो आपको आगे में जब क्रिएट करूंगा तब और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बट राइट नाउ यू कंसीडर कि हर स्पेसिफिक टास्क के लिए अपन स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं, या फिर एक ही परमिशन में मल्टीपल टास्क करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी गो विद द डिफॉल्ट वन। ओके, आप नया रोल भी क्रिएट कर सकते हो जो डिफाइन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा फंक्शन में आपको क्लाउड वॉच देखने का किसी को मान लो कि नहीं है, ये तो क्रिएट करने का है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड वॉच के लॉग देखना और अपलोड करना, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, जो एक नया कॉम्बिनेशन हो गया। आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज रोल बना सकते हो कि इसको ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो परमिशन, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन AWS बना के नहीं देता है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सो डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज the default execution role. So you'll have to say it creates a new role with
बेसिक परमिशन, और बेसिक परमिशन क्या है, क्लाउड वॉच के लॉग्स में अपडेट करना। मूविंग फॉरवर्ड आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग, मैं इतना ऊपर एक बार और बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये डिफॉल्ट स्क्रैच सेलेक्ट किया है, फंक्शन का नाम दिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट किया, आर्किटेक्चर भी डिफॉल्ट जो था वही रखा है, मैंने चेंज नहीं किया है। अगर आपको आर्किटेक्चर या किसी भी पॉइंट पे कुछ स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो सीधे इन्फो पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेसर के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी, आपको ये वाला प्रोसेसर यूज करना है तो आप ये यूज करो जिसमें 64 बिट ARM होगा, बेस फॉर प्रोसेसर इज द डिफॉल्ट आर्किटेक्चर, और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस केस में कौन सा आर्किटेक्चर आपको यूज करना है। आपकी प्रोसेसिंग, आपके यूसेज, कितना CPU लगेगा, कितना बिट लगेगा, उसके बेसिस पे आर्किटेक्चर डिसाइड होता है। बट आई एम नॉट गोइंग डीपर ऑन दैट, ओके। अब चाहो तो एडवांस सेटिंग कर सकते हो। अब ये अलग अलग चीज है। VPC इज वन ऑफ द सर्विस जो अपन आगे जाके कवर करने वाले, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ओके। यानी कि आप एक एनक्लोज्ड खुद का अलग प्राइवेट एनवायरनमेंट बना रहे हो, उसी के अंदर काम कर सकते हो। लाइक आपके कंपनी के लैपटॉप में कुछ परमिशंस होती हैं कि आप किसी और नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, वही पर्सन कनेक्ट कर सकता है, ऑथेंटिकेशन होते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दिस इज व्हाट वी कैन डू हियर आल्सो यूजिंग द VPC, कि इस लैम्डा फंक्शन को किसी एक उसी पर्टिकुलर सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी तो ही एक्सेप्ट करने देंगे, भले ही उस यूजर को परमिशन हो। वो यूजर किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसको नहीं परमिशन दी जाएगी, वो अपन सेटअप कर सकते हैं। अगर ये अपन ने एनेबल किया तो अपने को जाके VPC भी कॉन्फ़िगर करना हो, जो अपन करेंगे आगे जाके। सो दिस विल गो ऑन। जब अपन आज ये लैम्डा बना रहे, धीरे धीरे सारी सर्विसेज जब आती जाएंगी, अपन सब कुछ एक एक करके ऐड करेंगे। अपन टैग्स एनेबल कर सकते हैं। सो इसमें अपन की और वैल्यू, मतलब जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, सर्चिंग या फिल्टरिंग के लिए, कि अपने को इस पर्टिकुलर लैम्डा को किस टैग से असाइन करना है। प्रिंट, दैट मीन्स कि आप जितने भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जो आपके लैम्डा है उनको आपने सिर्फ एक प्रिंट टैग दे दिया, या वट एवर फॉर द सर्चिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ योर रिसोर्स। जब आप बहुत ज्यादा बनाते हो तो आपको सर्चिंग में प्रॉब्लम आता है। आप फंक्शन का URL भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन को HTTPS की एक रिक्वेस्ट, और फिर उसको ना अलग से अपन पोस्टमैन जैसे टूल से हिट करते हैं। यानी कि अभी इसमें इनपुट या आउटपुट कैसे जाएगा, इसको चेक कैसे करेंगे, तो आप एक्सटर्नल टूल से भी उसको ट्रिगर कर सकते हो। वो परमिशंस आप फंक्शन URL के थ्रू दे सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, कोड साइनिंग इज लाइक कि आप बता रहे हो कि ये कोड किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है या किसने इसको बनाया। इट्स लाइक काइंड ऑफ आप उस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हो, दैट दिस इज योर्स, ओके। या फिर इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, आपने जैसे ट्रेडिशनल एक फंक्शन बना दिया और किसी ने कुछ गलती से उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चेंजेस हुए हैं या कुछ ऑल्ट्रेशन हुए हैं, ओके। इतनी सारी कहानी बोर करने वाली है, पर इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ मैंने एक बार आपको बताया, यू हैव टू फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन रोल राइट नाउ, ठीक है। अब अपन करते हैं, एनी क्वेश्चन? थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन हो हाँ, जाएगा। इसलिए मैंने बोला है वो कहानी बोर करने वाली है। वापस से मैं समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन नेम पे ध्यान दो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और डिफॉल्ट रोल, तीन चीज। इतना तो आई होप क्लियर होगा राइट नाउ, ओके। यस। Let's create the function. So when we create the function, it will take some time to create our function. अब ये एक अलग सा UI आ गया। Can you see this? यस। Okay. इसमें कुछ भी अलग सी या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बस वो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सब कुछ भी अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, सिर्फ मेन मेन चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले बीच में आते हैं, ये अपना लैम्डा फंक्शन का जो नाम दिया था अपन ने, है ना, वो लैम्डा फंक्शन का नाम ऊपर आपको यहाँ आ गया है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। मैं एक बार इसका डुप्लीकेट टैप करता हूँ। इफ विल गो इनटू द लैम्डा
and if you'll search for the functions, last modified, तो यहाँ पे आपको print hello world नाम का एक फंक्शन बन गया, ओके, ऑटोमेटिक बन गया है, एंड इफ यू क्लिक ऑन इट इट विल ओपन द सेम स्क्रीन जो अभी अपना बना था. इफ यू विल सी, उसमें डिफॉल्ट जो कोड था, हेलो फ्रॉम लैम्डा. अब इसमें डोंट गो विद द पाइथन कोडिंग, जिसको नहीं आता है नो नीड टू वरी अबाउट इट. अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सिर्फ हेलो प्रिंट करा रहे हो, इतना सा अपना काम हो रहा है. अब ये लैम्डा फंक्शन बन गया है, बट ये अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं है. ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिप्लॉय. ठीक है, जब आप हैज एवरीवन सीन इट, डिप्लॉय बटन, Yes. Yes. एंड जैसे ही अपन डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, दैट मीन्स सक्सेसफुली अपडेटेड द फंक्शन प्रिंट हेलो वर्ल्ड. यानी कि आपका ये जो अब फंक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है, अब अपन इस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और अब अपन जाते हैं मॉनिटर पे. जो चीज अपन ने डिस्कस की थी कि इसके पास में एक परमिशन है टू अपलोड द लॉग्स इन द क्लाउड वॉच. ठीक है, सो दोज हु डोंट नो, क्लाउड वॉच इज अ सर्विस, okay, service for monitoring. Where is it? Management and governance. Yeah, here, monitor resources and application. That means आप resources को monitor कर सकते हो कि वो क्या कैसा perform कर रहे हैं. अभी जैसे lambda function के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका आपको monitoring का यहाँ पे एक dashboard है, बट आप हर एक सर्विस के अंदर तो जाके देखोगे नहीं. सो देर इज अ सेंट्रलाइज्ड स्पेसिफिक सर्विस जो सभी सर्विसेज का आपको मॉनिटरिंग भी देता है, एंड इवन विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के लिए भी वी हैव डिफरेंट सर्विस. ठीक है, नाउ अगर अपन वापस से लैम्डा फंक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे मॉनिटर में है क्लाउड वॉच लॉग्स. ठीक है, इस पे अपन क्लिक करते हैं, तो दैट मीन्स आपको एक यूआरएल मिलेगा जो स्पेसिफिक इसी कोड के एग्जीक्यूशन की सारी कहानी रखता है, कि कब एग्जीक्यूट हुआ, कितना टाइम लगा, किसने एग्जीक्यूट किया, कैसे हुआ, एवरीथिंग. सो इसको अभी तक अपन ने चलाया ही नहीं है, एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं किया है. दैट मीन्स दैट्स द रीजन इट इज सेइंग कि लॉग ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, आई सी इफ यू हैव एनी टेस्ट हियर. ठीक है, मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, ओके, इट विल टेक अ व्हाइल टू अपलोड द लॉग्स. ठीक है, अब वो एरर नहीं आ रही है, ऊपर नहीं आ रही है. मैंने उधर टेस्ट पे क्लिक किया और इधर क्लाउड वॉच को रिफ्रेश किया, यहाँ पे दो लॉग बन गए. कैन यू सी 15/7/17. वाई 15, ये टाइम स्टैम्प क्यों है, क्योंकि अपना जो अभी क्लाउड अपन यूज कर रहे हैं वो ऊपर इफ विल सी नॉर्थ वर्जीनिया, दैट मीन्स यूएस ईस्ट 1. ठीक है, करंट टाइम इन नॉर्थ वर्जीनिया, it's 11 a.m. In the morning, but it has some maybe different. Okay, UTC it is. Okay, time का जो है it is dependent on our main configuration as well. ठीक है, so this also we can change as per Indian standard time if we want, else mostly it is set as it is कि जो अपना data center है. ठीक है, right now it is not taking the North Virginia, it must be taking some other. बट आपको लास्ट इवेंट का टाइम पता चलेगा कि कब आया है. ओके, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लॉग, आपको पता चलेगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था. ओके, एंड अल्टीमेटली इसमें क्या क्या हुआ था. यहाँ आपको कुछ अभी समझ में नहीं आएगा मोस्टली. ठीक है, बट इफ यू विल सी कितना टाइम उसको लगा चलने में, आपका बिलिंग जो हुआ वो कितने टाइम का हुआ, देखा जाए तो 8.79 मिली सेकेंड चला है, पर राउंड फिगर में आपको 9 मिलीसेकंड का चार्ज लगेगा. ठीक है, मेमोरी साइज उसने कितनी कंज्यूम की है, नहीं, मेमोरी साइज उसके पास कितनी अवेलेबल है, कितनी उसने मैक्स मेमोरी यूज की है. ओके, गॉट इट. Yes. Yes.
एंड देन सो फार इट इज क्लियर। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग जाएगा आप लोगों को, पर आपको ये एक एक बार ट्राई करना है, ठीक है। Okay, sir. नाउ वंस यू विल ट्राई दैट, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना है, अंदर जाके डिप्लॉय करके टेस्ट करना है और क्लाउड वॉच में आके देखना है कि उसके लॉग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर कोड। यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, लॉग्स के अंदर डिटेल डालेगा। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो दिस इज माय फर्स्ट मैसेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसको वापस से टेस्ट करता हूँ। नाउ हियर इफ वी विल कम बैक and if we will refresh it again, it will have, हो सकता है वो सेम उसमें भी अपडेट कर देता है। ओके, जरूरी नहीं है हमेशा आपको दो ही फाइल मिले या जितने एग्जीक्यूट किया। अगर आपने बहुत रिसेंट ट्रिगर किया है तो वो एक ही उसमें भी उस डेटा को अपेंड कर देता है लॉग फाइल में। ओके, लेट मी चेक इट। ओके, इट्स नॉट येट अपडेटेड। समटाइम्स इट टेक्स टाइम ऑल्सो, ठीक है। पेशेंटली आपको देखना भी पड़ेगा, कभी कभी 2-2 5-5 मिनट भी मैंने वेट किया है। ओके, so it got updated last on 15/17 and okay, I think this is not that one which we are expecting, ठीक है। it didn't got updated right now, but अब अपन इसमें नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। so far is it clear कि अपने को कैसे किसी लैम्डा फंक्शन का कोड, कोड तो अभी ठीक है अपन प्रिंट करवा रहे हैं, बट कैसे उसको डिप्लॉय करना है सिंगल क्लिक। दैट मीन्स वाई वी आर कॉलिंग इट सर्वरलेस, अपने को कोई सर्वर की जरूरत नहीं पड़ी, वो डिप्लॉय हो गया और अपन टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो टेस्ट किया है बट अब अपन उसको एक्चुअली यूज भी करेंगे मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। Okay. लेट्स गो ऑन कॉन्फ़िगरेशन राइट नाउ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में इस लैम्डा के बारे में सारी डिटेल है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन लैम्डा, व्हाट इज द डिफॉल्ट लैम्डा टाइम आउट। 3 सेकेंड्स, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। आई इवन राइट इट इन दी, क्योंकि जहां जहां एडब्ल्यूएस का इंटरव्यू होगा ये पूछा जाएगा। डिफॉल्ट लैम्डा टाइम आउट विच इज 3 सेकेंड्स, यानी कि आपका लैम्डा अगर 3 सेकंड से ज्यादा चल रहा है तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। टाइम आउट मीन्स कितनी देर में वो टाइम आउट हो रहा है, वेट करने का, एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही, वो टाइम आउट ही हो जाएगा। ओके, ट्रिगर किया बट वो बीच में स्टक हो गया तो 3 सेकंड से ज्यादा स्टक हुआ तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। बट ट्रिगर किया और वो एग्जीक्यूशन कोड चलता रहेगा, वो 3 सेकंड से ज्यादा भी आपका चल सकता है, ठीक है। टाइम आउट है कि कितनी देर में वो टाइम उससे बाहर जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ हियर इज, आपसे डिफॉल्ट मेमोरी कितना एलोकेट होता है ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेशन, दैट इज 128। okay, everything is in MB, everything will be in MB, but there will be more questions। okay, कि आपका उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है and what is the minimum limit। so we have this, everything is on dashboard but it's just the matter of remembering it। okay, default ये है and the range is this, ठीक है। 128 MB से 10240 MB, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। बट ये पूछा जाता है एंड दिस शोकेस कि हाँ आपने उस चीज को यूज किया है। नेक्स्ट थिंग मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आपको, जब मैंने लैम्डा फंक्शन बनवाया था उसने बाय डिफॉल्ट एक रोल क्रिएट किया था, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में आके आपको वो रोल दिखता है। ओके, कैसे दिखता है, कॉन्फ़िगरेशन में गए अपन, अगर अपन एडिट करेंगे,
So you can see execution role. Choose a role that defines the permission of your function to create a custom role. Go to IAM console. अभी अपना जो रोल है वो क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड रोल, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ IAM पे, यहां से भी जा सकते हैं, ओके। सो ये क्रिएट रोल करने का बोल रहा है, वी विल गो जस्ट टू एग्जिस्टिंग रोल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ प्रिंट, यहाँ दिख रहा है एक रोल जो नया नया आया है रोल्स में, राइट। ये नहीं था पहले, बट ये क्यों आया है, क्योंकि अपन ने एक लैम्डा बनाया तो ऑटोमेटिक एक रोल क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर अपन अंदर जाते हैं, यहाँ पे उसको एक पॉलिसी है, दैट मीन्स परमिशन क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AWS लैम्डा बेसिक एग्जीक्यूशन रोल, यानी कि लैम्डा के जो बेसिक एग्जीक्यूशन के जो भी रोल्स है वो इसको असाइंड है, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखते हैं क्या क्या है, पॉलिसीज, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होगा रोल में, पॉलिसी में, यूजर में और ग्रुप में, बट पॉलिसी इज एग्जैक्टली कि वो क्या क्या कर सकता है। पॉलिसी मीन्स परमिशंस, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्लाउड वॉच लॉग्स, क्या कर सकता है वो, राइट कर सकता है। जो उधर लिखा हुआ था ना कि डिफॉल्ट इसको ये मिलेगा, अब आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। जैसे अपन एडिट पे गए, विल सी क्लाउड वॉच लॉग्स, ठीक है। आप, मैं वापस से बताता हूँ, एडिट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जेसन आपको दिखाएगा, ठीक है। मोस्टली लोग ये कॉपी करते हैं और वापस से अलाउ, और दैट इज अ डेवलपर थिंग, जो डेवलपर्स वही प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बट इफ यू आर नॉट अ कोर डेवलपर आप विजुअल वाले पार्ट पे जा सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्लाउड वॉच के का सेक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो क्लाउड वॉच के सारी परमिशन दे सकते हो, जैसे कि इवन लिस्ट करने में भी बहुत सारी परमिशन है स्पेसिफिक, जो अभी समझ में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। मैं स्पेसिफिक बताता हूँ जो आपको समझ में आएंगे, जैसे कि लॉग्स को फिल्टर करना, लॉग्स को फिल्टर, अभी सिर्फ लॉग्स में डिटेल डालना आपको परमिशन है, पर लॉग फिल्टर करने का नहीं है, जो अब अपन इसको ऐड कर देते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी। अब राइट वाले में आपको एक परमिशन है, क्रिएट लॉग ग्रुप, ठीक है। बट यू कैन, और ये स्पेसिफिक है आपके क्लाउड वॉच के लिए ही, तो सिर्फ क्लाउड वॉच में ही देखो कितनी सारी परमिशंस अपन दे सकते हैं। डिलीट करना लॉग, अभी ये लैम्डा फंक्शन के थ्रू कोई भी लॉग डिलीट नहीं हो सकता, बट अगर अपन चाहें कि ये लैम्डा फंक्शन से लॉग डिलीट भी हो जाए तो अपने को डिलीट की परमिशन पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको वो परमिशन नहीं है। सिमिलरली परमिशंस मैनेजमेंट, आपको रिसोर्स डिलीट करना, रिसोर्स यानी कि कोई भी चीज जो उस लैम्डा ने बनाई है, रिसोर्स यानी कि हो सकता है वो मीडिया फाइल हो सकता है वो टेक्स्ट फाइल हो, वट हो सकता है उसने कुछ इंस्टेंस या सर्वर बनाया हो, तो जो उसने बनाया है क्या उसको वो चीज डिस्ट्रॉय करने की भी परमिशन है, वो चीज भी आप उसको एलोकेट कर सकते हो। फिर आपको टैग्स एलोकेट करने का, जो स्टार्टिंग में लैम्डा फंक्शन जो अपन ने बनाया था उस टाइम पे मोस्टली कोई भी एक चीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ या टेबल हुआ, आपका एसक्यूएल के एग्जांपल में टेबल एक ही बार बनता है, बस डेटा अब सालों साल उसमें डलता जाएगा निकलता जाएगा, पर टेबल का स्ट्रक्चर एक बार बनाया है। सिमिलरली जिसने भी लैम्डा फंक्शन बनाया है वो उसका ऑनर है, ठीक है। उसके पास इनिशियली सारे डिसीजन मेकिंग राइट्स थे कि उसे टैगिंग डालना है नहीं डालना है, बट अब उस चीज को यूज करने वालों को, क्या उनको भी वो राइट्स है? बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, पर आप उनको देना चाहते हो तो यू कैन ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल टैग वाला ऑप्शन अपने पास में एडवांस सेटिंग में था, तब अपन सेलेक्ट कर सकते थे, पर अभी भी अपने को करना है तो आप रिसोर्सेज को टैग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। दिस वे इफ यू लेट सपोज ऐड एनीथिंग यू विल हैव टू, जैसे यहाँ पे एक था अपन ने एक और ऐड किया, जस्ट फॉर एग्जांपल यू विल गो नेक्स्ट एंड यू विल हैव टू सिंपली सेव इट। इसका यूसेज अभी आपको पता चलेगा जब मैं एक और सर्विस बताऊंगा। नींद आई क्या सबको? नहीं नहीं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में
बोरिंग बोरिंग चीजें मैं जल्दी निपटाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 हफ्ते आपकी एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी। जितना ज्यादा मैं इस टाइप का अकाउंट रिलेटेड चीजें कवर कर लेंगे, बाद में सब चीजें बहुत इजी लगने लग जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी क्लाउड वॉच में कोई लॉग आया है क्या। Oh, 10717। ओके, इसमें अभी नहीं आया है। ठीक है, नाउ इफ यू विल सी ऑन दी पॉलिसी नेम, तो आपको इसके अंदर अब परमिशंस रीड और राइट दोनों की मिल गई। पहले क्या था, सिर्फ राइट। राइट, अब आप क्या कर सकते हो, कभी आपने दूसरा लैम्डा फंक्शन बनाया, तो आपके पास जब वो बाय डिफॉल्ट रोल बनाने का ऑप्शन है, वहां पे आप, मैं वो भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ फंक्शन में गया, एक और नया फंक्शन बनाते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रिंट नेम फंक्शन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपना एक और फंक्शन है जिस जो अपन बनाना चाह रहे हैं, जिसका काम भी प्रिंट करने का है, उसको सेम परमिशन, तो अपन एक और रोल ना बनाते हुए यूज एन एग्जिस्टिंग रोल कर देंगे, और अपन पुराना जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड में जो रोल था वही असाइन कर देंगे, ताकि अब अगर अपन ने इसको कोई परमिशन दी तो सारे प्रिंट वाले लैम्डा को सेम परमिशन रहेगी। पर उसमें से कोई एक भी ऐसा स्पेसिफिक अपने पास में कोई लैम्डा फंक्शन आ गया जिसको कुछ अलग देना है, तो फिर उसके रोल्स अलग ही डिफाइन हो। आई होप रोल्स एटलीस्ट आपको क्लियर हो। राइट, क्लियर है रोल्स। यस। राइट, राइट, रोल्स आर जस्ट परमिशन, आपको आपने उसमें क्या क्या परमिशन दी है। इवन उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जब अपन उसमें और मूविंग फॉरवर्ड और अपन इन डेप्थ उसमें जाएंगे। ठीक है, so ultimate goal to assign roles is to manage the authentication and authorization कि किस व्यक्ति को क्या करने का परमिशन है फॉर ईच एंड एवरी सर्विस। ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर लैम्डा, फॉर एवरी सर्विस जो अपन कवर करेंगे सब में IAM रोल्स असाइन होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस फंक्शन, वट एवर वी हैव इनिशियली उसी के साथ आगे चलते हैं। ओके, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव टू मेक श्योर कि आपको टाइम आउट पता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, what is the maximum timeout I can give? Uh, you can see it now. It is 15 minutes. Okay, the maximum allowed lambda timeout is 15 second. 15 सेकेंड में वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। Okay, but there's also a minimum execution time. 0 minutes. No, it is 1 seconds. That means the minimum allowed value of this field is 1. That means आपको कम से कम 1 सेकेंड का तो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने उसको सब 0 कर दिया तो वो ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा। किसी ने उसको इन्वोक किया वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने टाइम ही नहीं दिया है चलने का। तो विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट्स व्हाई यू हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1। सो एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड एटलीस्ट 1 second of lambda timeout? Okay, reason is because if we are reducing below 1 second तो वो कभी execute ही नहीं होगा। It is as equal to not having that lambda function, फिर वो ना होना ही बेहतर है। I hope this is clear so far, everyone. यस। Yes. Yes, yes. Okay, ठीक है। Now again let's go to configuration. Most important thing, triggers.
आपने लैम्डा फंक्शन तो बना दिया, उसमें कोड भी लिख दिया, राइट नाउ भले वो प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, पर आप उसको ट्रिगर कैसे करोगे, चलेगा कैसे वो? ठीक है, सो आपको ट्रिगर ऐड करने होते हैं, अलग अलग सोर्सेस से आप उसको इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, ट्रिगर्स आई विल नॉट सेटअप राइट नाउ, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रिगर में एक और सर्विस आ जाएगी। अभी अपन ने इतनी सी ही देर में क्लाउड वॉच, लैम्डा और आईएएम के बेसिक को कवर किया है, इन डेप्थ भी उन सब में जाना है। अगेन वी विल नीड वन ट्रिगर वाला सर्विस, फॉर एग्जांपल S3। ठीक है, बिफोर मूविंग इन डेप्थ आई हैव टू कवर एटलीस्ट 4-5 सर्विस का बेसिक, ताकि आप अपन उनको साथ में लेके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। अब ट्रिगर इज द मेन थिंग कि आप उसको इन्वोक कहाँ से करोगे। आप हो सकता है किसी फाइल अपलोड होने के इवेंट पे ट्रिगर कर दो कि जब भी कोई पीडीएफ आ रहा है तो मेरा लैम्डा चल जाए, जब भी कोई लॉगिन कर रहा है तो मेरा लैम्डा चल जाए हेलो वाला। जैसे कि मॉनिटरिंग होता है, एम्प्लॉय के मॉनिटरिंग, जैसे ही लॉगिन किया तो टाइमर चल जाता है, तो टाइमर स्टार्ट करने का भी कहीं कोड होगा कि इतने अभी ये लॉगिन किया है, किसी ने कर्सर मूव नहीं किया है, एवरीथिंग इज बेसिस ऑन सम इवेंट। कुछ तो इवेंट हो रहा है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो इवेंट क्या है जिसके बेसिस पे ये लैम्डा चलेगा। ऐसे ही तो चलना शुरू हो नहीं जाएगा, हो सकता है वो टाइम बेस्ड हो के हर डेली 9 बजे ट्रिगर करना है, डेली 6 बजे करना है, या किसी ने लॉग इन किया तो ट्रिगर करना है, किसी ने लॉग आउट किया, या कभी कोई फाइल आई तो ट्रिगर करना है। वी हैव टू मेक अ फैक्टर कि इन व्हाट केस इसको ट्रिगर करना है। ठीक है, तो ट्रिगर हमेशा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। ओके, सो ट्रिगर भी वी विल सेट। नेक्स्ट लेट्स गो टू एग्जीक्यूशन रोल। जो उधर से मैंने IAM बताया था, स्पेसिफिक यहाँ पे एक टैब है परमिशंस का, जो ये बताता है कि अपने लैम्डा फंक्शन को क्या क्या परमिशंस हैं, बाय एक्शन और बाय रिसोर्स। ठीक है, कैसे? इसको AWS क्लाउड वॉच लॉग्स का परमिशन है। एक्शन क्या क्या कर सकता है वो? लॉग्स फिल्टर कर सकता है, जो अभी अपन ने असाइन किया था, राइट, ये वाला परमिशन। लॉग ग्रुप कर सकता है, लॉग स्ट्रीम, पुट लॉग इवेंट्स, क्योंकि लॉग ग्रुप बना रहा है तो उसके अंदर वो लॉग की इवेंट भी डाल रहा है, स्ट्रीम्स भी बना रहा है। ये एक ही फैमिली का है, बाकी ये अपन ने अलग से किया है। बाय रिसोर्स, ये कुछ अलग चीजें हैं जो मैं आपको रिसोर्स पे आएंगे तब बताएंगे। इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो लॉग को या रिसोर्सेस को उधर के ऊपर की एक्टिविटीज को भी मॉनिटर कर रहा है, भले वो एग्जीक्यूशन का हो या रिसोर्सेस का हो। इन शॉर्ट यू विल से कि लॉग्स में आप स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हो या इवेंट क्रिएट कर रहे हो, वो भी एक तरह का अपने लिए रिसोर्स ही है, जिसको अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक एक हुआ एक्शन कि आप लॉग बना सकते हो, और एक होता है कि लॉग बन गया। तो लॉग जो बन गया है वो एक रिसोर्स बन गया है, जिसे आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। पर वो बनाने के लिए जो परमिशन चाहिए थी वो एक एक्शन था। क्लियर एवरीवन? एक्शन और रिसोर्स, ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम है आपको बताना, बाकी ये नहीं पूछा जाता है, इतना डेप्थ में कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, आवाज डाउन हो गई सबकी No, 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 एक no, yes, घंटे में? available. आ रही है। ठीक है, ओके। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट, ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपको इस कोड में लगने वाले हैं। जैसे कि, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कोड है जिसमें आपको कोई डेटाबेस एक्सेस करना है या कोई फाइल एक्सेस करनी है, पर फाइल को एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड लगता है, या वो फाइल कहाँ रखी है उसका एड्रेस लगता है। तो वो एड्रेस आप अगर यहाँ कोड में लिख दोगे तो वो सबको दिख जाएगा, कोई भी आके कोड देखेगा, कोड के अंदर पासवर्ड दिख जाएगा। तो ऐसी चीजें जो कॉन्फ़िगरेशन में या कोड बीच में से यूज करता है या कहीं से उठाता है, जैसे कि डिपेंडेंसी फाइल हो गई, तो आप एनवायरमेंट वेरिएबल बनाते हो। एनवायरमेंट वेरिएबल कोडिंग का टर्म है, डेवलपर्स वाला टर्म है। आप भी उस चीज के बारे में जानोगे तो अच्छी बात है।
ये वो चीज है जो एनवायरनमेंट, जो मैं बोल रहा था डॉकर कुबरनेट्स वाला, जो एनवायरनमेंट को सेटअप करना या किसी और एक्सटर्नल चीज से कनेक्ट करने के लिए जो भी आपको डेटा की जरूरत पड़ रही है वो आप इधर सेटअप करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि डेटाबेस का नेम, और आपने बोल दिया टेस्ट 1, टेस्ट डेटाबेस, या फिर आपने डेटाबेस का नाम बोल दिया एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है। और आपने एक और डाल दिया कि डेटाबेस का पासवर्ड, तो आपने डाल दिया माय पासवर्ड। अभी आपने सेव कर दिया, तो जब आप कोड में आते हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह नहीं लिखना होता है, आप सिंपली उसकी की यूज करते हो। जो अपन ने यहाँ पे की बनाई है डीबी नेम, तो आप डीबी नेम से की डालोगे कोड में तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि उसकी वैल्यू जो है वेरिएबल में वही अपने को यूज करना है। दिस मेक्स इट सिक्योर टू यूज, आपका कोड रीडेबिलिटी में आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें एक्सपोज नहीं होती। ठीक है, क्लियर विथ एवरीवन? Okay. Yes. ओके, इसमें कुछ भी चीज हो सकती है, आपका पाथ हो सकता है, वेबसाइट की यूआरएल हो सकती है, कोई सी भी चीज जो आप यहाँ ऐसे कोड में नहीं डालना चाहते हो। ओके, एनीथिंग जो आपको हाइड करना है, आप नहीं चाहते हो, और वो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, पासवर्ड है फिक्स ही है। अगर चेंज हुआ है तो आप जाके कोड में, हाँ एक और प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज जो फ्रीक्वेंटली चेंज भी हो रही है, ठीक है, और डेटाबेस में रखते हैं वैसे तो अपन फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाली चीज है, पर वो डेटाबेस में को भी एक्सेस करने के लिए कुछ तो पासवर्ड लग रहा है। पासवर्ड भी हो सकता है फॉर बेस्ट सिक्योरिटी रीजन आप महीने में एक बार बदलो, पर अगर आपने महीने में एक बार पासवर्ड बदला तो और अगर वो कोड में लिखा है तो आपको डिप्लॉय बार बार करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट करने में भले एक फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी स्क्रीन पे देखना आप, ये मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया और आप टाइम ट्रैक करना, ये मैंने डिप्लॉय पे, if I'm clicking, I'll have to make some change before deploying. Hi there. ओके, अब मैं डिप्लॉय पे जैसे ही क्लिक करूंगा, जितनी देर के लिए एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है भले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो, उतनी देर के लिए वो अनअवेलेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में डिप्लॉय हो गया। पर अगर मेरा फंक्शन आज से 1 साल पहले बनाया होता मैंने, बहुत यूजर है, किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, या फॉर एग्जांपल कॉलिंग में यूज हो रहा है, तो किसी के कॉल कनेक्टेड हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, या जो सीआरएम कॉल सेंटर वाले यूज करते हैं, अगर उन्होंने वो 3 सेकंड का डिप्लॉय भी किया तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। सो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज इट्स लाइक दे नेवर want things to deploy, and that's why we keep few things differently. I hope ये चीज समझ में आई हो सबको। Yes. ओके, डिप्लॉयमेंट ऑलवेज कम्स अप विथ डाउन टाइम। ये AWS के अलावा दूसरी चीज है, कोई भी कोड या एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है तो एप्लीकेशन डाउन होती है, तो देयर इज ए डाउन टाइम बिहाइंड एवरी डिप्लॉयमेंट। ओके, ठीक है, सो Yes. फार एवरीवन? Yes, yes, yes. Yes, Okay, sir. now next thing, if we again go with the configuration, बहुत ज्यादा चीजें काम भी नहीं आएंगी, बट concurrency is one important thing. Okay, I'll go on concurrency and go on edit and go on reserve concurrency. Your function is always throttled. Throttled means अगर अपन ने concurrency 0 रख दिया, that means parallelly आप उसको बहुत चला सकते हो। 10 फाइल आई 10 बार चल जाएगा, 50 फाइल आई 50 बार वो थ्रॉटल होता जाएगा, उस पर वेट आपको कंटिन्यूसली चल रहा है, रैम यूज कर रहा है, वो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने इस कंकरेंसी 1 कर दिया, दैट मीन्स ओके दे हैव चेंज्ड द अनरिजर्व्ड कंकरेंसी कांट गो बिलो 10। ओके, 11 किया एंड सेव किया, प्लीज यूज द करेक्ट just the unreserved. Okay, there are few changes that I might need to see, but concurrency means parallel execution. Okay,
एक टाइम पे 10 फाइल आई, तो क्या वो 10 बार पैरेलल एक ही टाइम पे चल सकता है वो लैम्डा? वो कंकरेंसी का आपको, I'll have to check this documentation. There is some upgrade in the AWS. Okay, but I'll cover this part later on. Concurrency means ये आपको parallel execution कितना आप allow करते हो. अगर आपने उसको 0 सेट कर दिया तो आपका फंक्शन हमेशा थ्रोटल हो सकता है. कितनी भी बार आप उसको इन्वोक कर दो कि चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, आपका बिलिंग बढ़ सकती है, रैम बढ़ सकती है, which is not a safer option. So you have to set some value. I don't know why it is taking some, maybe कुछ access issue भी हो सकता है, but you always have to set a concurrency of 1 अगर आप चाहते हो कि आपका जो फंक्शन है उसको एक बार में एक ही बार चलाया जाए. उसका मैं यूज केस बताता हूँ. मान लो आपका फंक्शन चला, उसने एक फाइल जनरेट की और उसका आउटपुट हो गया, रख दिया. अब उसी फाइल को वो एक्सेस करेगा अगले अगले डेटा को आने के लिए. ठीक है, अगर एक साथ 3 एग्जीक्यूशन चल रहा है और तीनों का आउटपुट एक ही फाइल में जाना है जो आगे जाके इनपुट के लिए यूज होगा. मैं आपको बेटर विजुलाइज करवाता हूँ, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. हाँ सर, ये जो क्लासेस मतलब चल रही है, ये रिकॉर्डेड हो मतलब हो रहा है कि हो रहा है. ओके जस्ट वन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक डेटाबेस है या फिर कोई मेरा फाइल है. ठीक है, ये मेरा बीच में लैम्डा फंक्शन है. ठीक है, अब मेरा लैम्डा फंक्शन में कोड है अपर केस करने का. ठीक है, और अपर केस करके स्टोर करना इस डेटाबेस में. ठीक है, और मान लो कोई मेरी नई फाइल आती है ना. अब ये रन करने पहले पहले वो डेटाबेस में कुछ चेक करता है और फिर वो आता है अपने पास में इधर. रन होने न्यू फाइल, मैं एक सीक्वेंस बताता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल आई आपकी फर्स्ट टाइम. ठीक है, उसका अगला स्टेप होगा चेक करना डेटाबेस में कि क्या वो फाइल ऑलरेडी अपन ने क्लीन करी है या नहीं करी है. ठीक है, और अगर नहीं करी है तो उसको उसमें अपर केस या लोअर केस कर दो, है ना. और करने के बाद में आप फोर्थ स्टेप में डेटाबेस में स्टोर कर दो. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ही टाइम पे 2 फाइल आ गई एक ही जैसी, है ना, और पहली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई. विद इन 1 सेकेंड वो जाके अपडेट होने ही वाली है. वैसे ही हो सकता है एग्जीक्यूट होने में उसको 3 सेकेंड लगने वाले हैं, पर वो अभी डेटाबेस तक पहुंची नहीं है. वैसे ही एक और फाइल आ गई सेम नाम की, उसने जाके डेटाबेस में देखा कि क्या अपन ने ये फाइल क्लीन करी है, तो वो तो बोलेगा नहीं करी है. वापस से वो उसको भी भेज देगा लैम्डा पे. अब क्या होगा, एक फाइल जो पहले गई वो तो चली जाएगी, दूसरी फाइल में कुछ एरर आ जाएंगे क्योंकि डेटाबेस में ऑब्वियसली डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है. इन दैट केस आपका ये एरर आउट हो जाएगा. ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए आप आपके लैम्डा को शायद एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन करने की परमिशन दो. समझ में आया सबको? यस या फिर Yes, मैं sir. वापस से भी बता सकता हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट इफ Um, इफ यू yes, वांट मी sir. टू रिपीट. Yes, sir. It is better. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक फाइल है. ठीक है, जिसका नाम हमेशा यूनिक रहता है. ठीक है, नंबर बेसिस पे रहता होगा कि आज की डेट में नंबर 1 फाइल, नंबर 2, नंबर 3. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने गलती से 1 नंबर की 2 बार फाइल अपलोड कर दी. ह्यूमन मिस्टेक्स होती है. ठीक है, अब क्या होगा, अपना फ्लो ये है कि अगर वो फाइल को अपन ने कभी क्लीन नहीं किया है तो वो डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि क्या ये कभी क्लीन की है एज ए वैलिडेशन. वो बोलेगा नहीं क्लीन की है तो वो जाके क्लीन करने लग जाएगा. एक फ्लो है आइडियल. उसी टाइम पे गलती से किसी दूसरे टीम मेंबर ने भी वही फाइल अपलोड कर दी. अभी इधर एग्जीक्यूशन चल ही रहा है पर डेटाबेस में अपडेट नहीं गई है कि वो क्लीन हो चुकी है. वैसे ही ये चेक करने गया, उसको फिर से पता चला कि हाँ ये क्लीन नहीं हुई है और ये काम विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही हो रहा है. अब ये भी इधर चला गया. अब ये 2
पैरेलल प्रोसेसिंग चालू हो गई अगर अपन ने लैम्डा को कंकरेंट अलाउ कर रखा है तो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये फिनिश होगा ऑब्वियसली पहले हो गया क्योंकि फाइल सेम है और ये पहले आ गया है, तो टाइम तो सेम लगना है, पर जो पहले आया है भले 1 सेकेंड, तो वो पहले कंप्लीट होगा। वो पहले होगा, ये यहाँ जाएगा और इसमें अपडेट हो जाएगा। बट जो सेकंड फाइल है उसको डेटाबेस इन नहीं करेगा, राइट? तो कुछ एरर आएगा विच माइट कॉज सम इश्यूज डेटाबेस में, कहीं ना कहीं कोड आपका स्टक हो जाएगा, टाइम आउट, मल्टीपल थिंग्स कैन कम ड्यू टू स्मॉल थिंग। इस टाइप के सिचुएशंस जहां पे एग्जीक्यूशन का आउटपुट आपके एग्जीक्यूशन के पहले वाले डिसीजन पे भी डिपेंडेंट हो, यानी कि अल्टीमेट जहां आउटपुट जा रहा है वहीं पे आपका पहला डिसीजन मेकिंग भी उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको कंकरेंसी की जरूरत पड़ती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Got it. Okay. It's not that much usable, but आपसे पूछा जा सकता है why we need concurrency in lambda। आपको सिंपल ये आंसर याद रखना है, whenever there can be some situation where we don't want our lambda to do parallel processing because the output might affect some of the functionality. So we want to restrict it to run or do only one execution or two execution or five execution at a time. That's the reason we need concurrency of the lambda to be configured as per our requirement. हाँ, सेम टाइप की फाइल या फिर डेटा मोस्टली नहीं होता है डेटाबेस में, आई मीन प्राइमरी की नहीं होती है। if you have walked through the SQL database, एक कॉलम होता है जो आपका हमेशा यूनिक होता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी। तो वो एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, तो उसमें अगर किसी का एम्प्लॉय आईडी 103 है तो वो 103 नाम की एंट्री तो अलाउ नहीं करेगा, भले नाम सेम हो, मोबाइल नंबर हो, मोस्टली मोबाइल नंबर भी यूनिक रहता है, पैन कार्ड जैसे हो गया, पैन कार्ड नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। सो दिस जैसे टीसीएस वगैरह ये कैसे ट्रैक करती है कि आज आपका इंटरव्यू हो गया है तो 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते। दे हैव देयर डेटाबेस विद द पैन कार्ड एंड जीमेल आईडी एंड फोन नंबर्स, दैट्स हाउ दे ट्रैक, ताकि वापस से एप्लीकेशन जाती है तो वो रिजेक्शन का मेल ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन सो फार? Yes. Yes, sir. ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड या आपको इतनी चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस। मैं थोड़ा स्टेप्स लिखता हूँ। First you'll have to create a lambda. Okay, even before that first I want you to create your account जिसने नहीं बनाया है। Okay, create AWS account, create lambda, choose a programming language and lambda name, ठीक है? Then let other parameters set to default only, जो ऑलरेडी selected है वही selected रहने देना। For the role, again it will be default, but let it create its own new role. Okay, then deploy then create the lambda, deploy the lambda. If you want to experiment, you can change the code of the lambda who knows a bit of programming. Then test the lambda, check for the lambda roles, go to CloudWatch and see if logs are getting created. इतना सा काम। कहानी मैंने बहुत सारी लंबी लंबी सुनाई है, बट दिस इज द मेन थिंग जो आपको एटलीस्ट रिमेम्बर, यू शुड रिमेम्बर, और आपको इतना याद रहना चाहिए। आई होप इतना आप कर लोगे, राइट? Yes. Yes.
or if you face any challenge during this process, then you should immediately ping me in the chat, and then I'll help you out. Okay. Okay. इट्स बेटर आप लोग ये इतना कर लो, क्योंकि इनिशियली वी शुड नॉट डू मच, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। एंड मेक श्योर, वैसे आप कुछ कोड चेंज नहीं करोगे, इफ यू आर चेंजिंग एनी कोड, मेक श्योर आपका जो लैम्डा है उसका ट्रिगर नहीं सेट करो आप, और अगर आप सेट करते हो बाय चांस किसी को अगर पहले से आता है तो उसको स्टॉप करना, नहीं तो वो कंकरेंटली या रिकर्सिवली चल गया तो शायद रात भर में डॉलर्स का बिल आ सकता है। सो बेटर है यू डोंट डू इट, एंड एवरी टाइम जस्ट फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड, या मृदुल जस्ट अ मोमेंट, फॉर अ सेफर साइड आप लोग एक काम करो, लैम्डा का कोड नोटपैड में सेव कर लो, और अगर वो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है तो टास्क होने के बाद लैम्डा को डिलीट कर दो। यस मृदुल, टेल मी। सर लाइक लैम्ब्डा क्रिएट करने के बाद ये कोड करना है, जो सर्विसेज पे हम लोगों ने अभी आपने बताया काम किया है उस पे तो ऐसा कुछ प्राइस वगैरह जनरेट नहीं होगा? नहीं होगा, दिस इज Okay. बेस्ट प्रैक्टिस। हम लोगों को वो मेंटालिटी अभी टीयर 1 सर्विसेज में है कि कोई प्राइस नहीं होगा, बट एक टाइम ऐसा आता है कि अपन वो फ्री टीयर को भी क्रॉस कर जाते हैं, राइट? Okay. सो इट्स बेटर कि अपन हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करें अगर अपन सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं तो। ओके, सो फॉर अ टेस्टिंग इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, इट्स बेटर कि आपने लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड बनाया था, इसको सेलेक्ट किया, एक्शंस में जाके डिलीट कर दिया अगर वो आपके काम का नहीं है, ताकि आप Okay. सुकून से सो सको। रात में नींद खुले तो ये डर ना हो कि कहीं मेरा बिल ना आ जाए, राइट? बट ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी एनी चार्ज फॉर श्योर। ठीक है, जब अपन Okay. प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आई लेट इट रन। इनिशियली आई जस्ट डोंट वांट यू टू रिस्क दैट थिंग, कभी गलती से कुछ आपने ऑन ऑफ कर दिया तो यू जस्ट प्रैक्टिस इट एंड देन टर्न इट ऑफ। Okay, sir. Thank you. ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीवन? एंड इन द मीन टाइम ये सारी चीजें याद रख लेना, लैम्डा का डिफॉल्ट टाइम आउट, मैक्सिमम कितना टाइम आउट अलाउ है, डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेशन कितना रेंज है, why we need at least 1 second of lambda timeout, these are the things जो इंटरव्यू में डिस्कस की जाती है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग ऑन लैम्डा इन डेप्थ, एक एक चीज आएगी। अभी ये लेयर्स को भी देखना है अपने को, वीपीसी देखना है, ये लेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो अभी नहीं, अपन कोर लैम्डा में जाएंगे तब इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, fine Okay. everyone, Okay. so we started with 3 services right now, tomorrow I'll also add S3 क्योंकि अपन को ट्रिगर्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 सर्विसेज इन पैरेलल चलेगी, एंड देन उससे अपन कुछ बनाएंगे और फिर उसमें एक एक करके, फिर जैसे वीपीसी लगेगा तो वीपीसी ऐड करेंगे, आरडीएस डेटाबेस, तो आपका एक पूरा प्रोजेक्ट ही बनता चला जाएगा, एक एक करके एक एक सर्विसेज अपन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, Okay. ओके फाइन गाइस, लेट्स मीट टुमारो। हो सकता है अपन सैटरडे को भी कंटिन्यू कर ले, जस्ट इन केस टू कवर अप, अगर इफ वी विल रन बिहाइंड दिस schedule, that also depends on us only. Okay, so we'll manage. Okay, sir. Fine, thank you everyone. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, bye. Okay, sir. Bye. Bye. हाँ